Okay, good evening student. In the last lecture हमने क्या देखा था? दो टाइप्स के सॉलिड्स है. कौन से दो टाइप्स के सॉलिड्स है? देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड. What is crystalline solid? In crystalline solid, the arrangement of the particle is regular. The arrangement of the particle is regular, are called as a crystalline solid. And what is amorphous? The amorphous solid means what? Amorphous solid means the arrangement of the constituent particle is not regular. Not regular means what? The particle are arranged in the random manner. The particle are arranged in the random manner. So in the last lecture, we have seen about the crystalline. What is the meaning of crystalline and what is the meaning of amorphous? Crystalline means what? The arrangement of the particle is regular. Amorphous means what? The arrangement of particle is not regular. Then after that, we have seen two more meanings. Isomorphism. Isomorphism means what? Two or more substances but having same structure are called as the isomorph. Two or more substances but having the same structure are called as the isomorph. And why isomorph? In what happen in the isomorph? The two substances have the same chemical composition. The chemical composition has the same atomic ratio. Like for example, in NaF, the ratio between Na and F is 1:1, and in MgO also ratio between Mg and O is 1:1. So two or more substances having same structure are called as isomorph, and the phenomena is called as isomorphism. Polymerism. Polymorphism means what? Single substance but that exist in two or more form are called as a polymorph. सब्सटेंस एक ही रहेगा बट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिट करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फ. एंड पॉलीमॉर्फ इज आल्सो नथिंग बट व्हाट? अगर सिंगल एलिमेंट रहेगा, सिंगल एलिमेंट के लिए पॉलीमॉर्फ की जगह क्या यूज करते हैं हम लोग? वर्ड एलोट्रॉपी और एलोट्रॉप्स. करेक्ट. तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था. टुडे विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट हेडिंग. Classification of crystalline solid. How the solids are classified. Classification of crystalline solid, and in that first one, see, they are classified as the first one is what? Ionic crystal, or we can call them as ionic solids. Either you can call them as the ionic crystal or you can call them as the ionic solid. Now, what is the ionic solids here? I'll write one point in each here. So what is the characteristic here of ionic solid? The characteristics of the ionic crystal. The first one, student, 1 minute. The constituent particles of
are charged ions. मतलब हमारा आयोनिक क्रिस्टल किससे बना हुआ रहेगा, किससे बनेगा, किससे फॉर्म होगा? द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स आर व्हाट? चार्ज आयन. चार्ज आयन मतलब ये किससे बनेगा? दैट इज फ्रॉम कैटायंस एंड एनायंस. ये जो हमारे आयोनिक सॉलिड्स है, आयोनिक सॉलिड किससे बनेंगे? आयोनिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? चार्ज्ड आयन. Charged ion मतलब what? They are made up of cations and anions. They are made up of cations and anions. Okay. बाद में एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे. For a second one, the particles of ionic crystals are held by electrostatic force of attraction. The particle of ionic crystals are held by electrostatic force of attraction. Attraction between देखो एग्जांपल देखो. पहले यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ क्या क्या बोला है? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल्स आर चार्ज्ड आयन. मतलब हमारा आयोनिक क्रिस्टल किससे बनेगा? चार्ज्ड आयन से बनेगा. चार्ज आयन मतलब किससे बनेगा? कैटायंस एंड एनायंस से. और ये जो कैटायंस एंड एनायंस है, दे आर हेल्ड टुगेदर. मतलब एक साथ कैसे रहेंगे? द कैटायंस एंड एनायंस आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन. मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड, तो हमें मालूम है इन सोडियम क्लोराइड हमें क्या मिलेगा? सोडियम जिसके ऊपर चार्ज रहेगा +1 एंड Cl जिसके ऊपर चार्ज रहेगा -1. मतलब सोडियम क्लोराइड हमारा जो सॉल्ट है किससे बना हुआ है? Na+. Na+ इज कॉल्ड एज अ कैटायन. Cl- इज कॉल्ड एज अ anion. तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट इज मेड अप ऑफ कैटायन एंड anion. और इस कैटायन और anion के बीच में क्या रहेगा? अट्रैक्शन रहेगा. कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. करेक्ट. The sodium chloride is made up of Na plus and Cl minus. Na plus and Cl minus मतलब they are made up of cations and anion. ओके. और दो आयंस के बीच में क्या रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ. मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का मतलब पॉजिटिवली चार्ज Na प्लस निगेटिवली चार्ज Cl माइनस को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. या निगेटिवली चार्ज Cl माइनस पॉजिटिवली चार्ज Na प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. करेक्ट. दूसरा एग्जांपल अगर आप लोगे पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड अगर लोगे तो कौन सा आयन यहाँ पे रहेंगे? K+ एंड Cl माइनस. K+ is called as a cation. Cl minus is called as a anion. And cation and anion. So KCl के किससे बना हुआ है? K+ and Cl, one cation, one anion. और कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन है. कौन सा अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको बोलते हैं? दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में अगर अट्रैक्शन रहेगा, दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में अगर अट्रैक्शन रहेगा, the oppositely charged force of attraction between the ion are called as what? Electrostatic force of attraction. K plus and Cl minus. K plus and Cl minus. Correct? ये इनके बारे में. Third point I'll write here. Ionic crystals are hard and brittle. Ionic crystals are very hard. मतलब hard है but brittle है. brittle मतलब what? अगर हैमर करोगे तो हैमरिंग करने के बाद they can change into powder form. देखो अगर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट इज हार्ड.
लेकिन अगर उसको हैमरिंग करोगे तो salt will change into what? Powder. That is called as the brittle. So they are very hard and brittle. They have high melting point. They have high melting point. They will melt at very, because they are very hard, and because they are very hard, they will melt at a very high temperature. They have a very high melting point. They are non-conductors of electricity in solid state. They are non-conductors of electricity in the solid state. मतलब अगर ये solid state में रहेंगे, अगर ये solid state में रहेंगे तो electricity conduct नहीं करेंगे. So in the solid state they do not conduct the electricity, correct? But however, they are good conductors when melted or dissolved in water. मतलब अगर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट सॉलिड स्टेट में रहेगा तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. सो दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन द सॉलिड स्टेट. लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को अगर आप मेल्ट करोगे या अगर उसे डिजोल्व करोगे, डिजोल्व इन वाटर करोगे, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को मेल्ट करोगे या उसे डिजोल्व करोगे इन वाटर, देन इट विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. मतलब इन सॉलिड स्टेट they do not conduct the electricity. In solid state they do not conduct the electricity, but when they melted or they dissolved in the water they conduct the electricity. Which are the example of the salt we can take here? We can take the example of sodium chloride, we can take the example of potassium chloride, we can take the example of potassium sulfate, like and so on. So these are the examples of ionic crystal. Okay, so what is ionic crystal? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जिनसे ये बना रहेगा वो क्या रहेंगे? चार्ज आयन रहेंगे. और कौन से चार्ज आयन रहेंगे? कैटायंस एंड एनायन. सेकंड, these charged particles are held together by electrostatic force of attraction. And what is electrostatic force? The force of attraction between the oppositely charged ions. Then ionic crystals are very hard, and because they are very hard they have that high melting point. They have got very high melting point. And they are non-conductors of electricity in the solid state, but however they are good conductors when melted or dissolved in the water, correct? तो ये सेम प्रॉपर्टी देखो उन्होंने टेक्स्ट बुक में यहाँ पे समराइज किया है. देखो आयोनिक सॉलिड किससे बना हुआ रहेगा? कैटायंस एंड एनायन से बना. सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कैटायन एंड एनायन. कैटायन और एनायन में कौन सा फोर्स रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. They are very hard and brittle, but they have got very high melting point. The melting point is what? From 600 to 3000 degrees centigrade. And they are poor electrical conductor in the solid state, but good conductor when they dissolved or melted in the water. When they melted or dissolved in the water, they are good conductors. And examples are sodium chloride and calcium chloride. ये हमारे solid states के properties हैं, correct? Now we'll go for the second type of the solid. Second type of the solid, that is number 2, covalent network
सॉलिड्स और आप उसे और भी बोल सकते हो कोवैलेंट नेटवर्क। सॉलिड के लिए क्या बोल सकते हो? क्रिस्टल्स। सो आइदर यू कैन कॉल देम एज अ कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क क्यों हम लोग बाद में देखेंगे, कोवैलेंट सॉलिड और कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। कोवैलेंट क्यों सबसे पहले यहाँ पे, सो आई जस्ट राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स। The first one, what is the first characteristic here? The constituent particle in covalent network solid. See, either you can use the word solid or you can use the word crystal, दोनों में से कोई भी चलेगा। The constituent particle में किससे बना हुआ रहेगा, किससे बनेगा? The constituent particle in the covalent network solids are atoms. ये किससे बनेगा? एटम से बनेगा। मतलब one atom, first atom will connect to second atom will connect to third atom will connect to fourth atom. The constituent particle in a covalent network solids are atom. या atom से बनेगा। atom से कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा? Here the atom in these crystals are linked by a continuous system of कोवैलेंट बॉन्ड्स। मतलब यहाँ पे जो एटम्स है ये क्रिस्टल्स में जो एटम्स है दे आर लिंक्ड, एक दूसरे को लिंक करेंगे कैसे? कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। दे फॉर्म, मैं एक्सप्लेन पॉइंट बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, दे फॉर्म थ्री डायमेंशनल network solid. They form three-dimensional network solid that forms a giant molecule. See here, the atom in this crystal are linked by a continuous system of covalent bond. The atoms in this system, atom in the crystal are linked together by what? Covalent bond. अभी कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कैसे देखो कि अगर फॉर एग्जांपल एक एटम है, ये एटम है, तो ये एटम दूसरे एटम को लिंक करेगा, ये एटम और तीन एटम को लिंक करेगा। फिर अगर देखो इसका मतलब एक एटम कितने एटम को लिंक कर रहा है? 1 2 3 4। फिर ये एटम और देखो कितने एटम को लिंक कर रहा है? 1 2 3 4। ये एटम कितने एटम को लिंक कर रहा है? 1 2 3 4।
1 2 3 4, फिर आगे वापस यहाँ से डिब्रेक होगा। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बढ़ते ही जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर मतलब देखो, एक आइटम 3 आइटम को लिंक कर रहा है, फिर वापस हर एक आइटम 3 आइटम को लिंक कर रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर बढ़ते ही जाएगा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, दे फॉर्म द कंटिन्यूअस सिस्टम, कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखो फर्स्ट आइटम और दूसरे आइटम में बॉन्ड कौन सा रहेगा, इनके बीच में ये जो बॉन्ड रहेगा, ये बॉन्ड कौन सा रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? The bond which is formed due to the sharing of electron, the bond which is formed due to sharing of electron, मतलब इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड मतलब व्हाट, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे, ये आइटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरा आइटम भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, एंड देन दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन पे। ये आइटम भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये आइटम भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, एंड देन दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन पे। तो बॉन्ड फॉर्म्स आर कोवैलेंट बिकॉज द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू व्हाट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए the atom in the crystals are linked together by continuous system of covalent bond, and they form three-dimensional नेटवर्क सॉलिड। ये नेटवर्क, एक नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क थ्री डायमेंशनल मतलब कैसा, ये लेंथ वाइज भी बढ़ रहा है, ब्रेथ वाइज भी बढ़ रहा है, और ऐसा हाइट वाइज भी बढ़ेगा। मतलब ये मॉलिक्यूल ऊपर के मॉलिक्यूल से बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये स्ट्रक्चर लेंथ वाइज भी बढ़ेगा, ये स्ट्रक्चर ब्रेथ वाइज भी बढ़ेगा, और ये हाइट वाइज भी बढ़ेगा। तो इट विल फॉर्म व्हाट, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। एंड इसीलिए हमें एक बड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ए जायंट मॉलिक्यूल। इट विल फॉर्म अ जायंट मॉलिक्यूल। अब एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो अपने बुक में डायग्राम नहीं, लेकिन आई जस्ट शो यू डायग्राम। देखो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल आएगा डायमंड। ये हमारे डायमंड का स्ट्रक्चर है। देखो एक आइटम 4 आइटम को लिंक कर रहा है। डायमंड, डायमंड किससे बना रहेगा, कार्बन से। डायमंड इज मेड ऑफ कार्बन। तो ये हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर है कार्बन। और ये हमारे ग्राफाइट का स्ट्रक्चर है। ग्राफाइट जो भी कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है, डायमंड, ग्राफाइट, फुलरिन। और डायमंड इज ऑल्सो कोवैलेंट सॉलिड, ग्राफाइट इज ऑल्सो कोवैलेंट सॉलिड, मतलब एक कोवैलेंट सॉलिड्स है। और कोवैलेंट सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नेटवर्क सॉलिड, एंड दे फॉर्म अ जायंट मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे बड़े बड़े मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर यहाँ पे लेयर फॉर्म में है, यहाँ पे नेटवर्क फॉर्म में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बोला उन्होंने, नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। और यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, लेयर स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट, लेयर स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर्स है। तो व्हाट इज द पॉइंट वी सेड हियर, द कॉन्स्टिट्यूट मतलब जिनसे हमारा ये सॉलिड बनेगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड्स आर एटम। द एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस कोवैलेंट बॉन्ड, and they form the three-dimensional network solid, that is they form the giant molecule. Covalent network solids or crystal are very hard. The covalent network solids are very hard, मतलब बहुत hard है। They are most दे आर मोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब इनको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दिया तो स्ट्रक्चर या साइज रिड्यूस नहीं होगा, साइज उतना के उतना ही रहेगा। मतलब दे आर मोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल। मतलब हाँ, अगर मैंने यहाँ से इन हटा दिया तो क्या हुआ, दे आर कॉम्प्रेसिबल। मतलब अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिया
साइज छोटा होगा, मतलब कॉम्प्रेसेबल, लेकिन ये कॉम्प्रेसेबल नहीं है, दे आर इनकॉम्प्रेसेबल, मतलब अगर आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो साइज कम नहीं होगा, साइज रिमेन्स द सेम। That's why we say that they are very hard and they are most मतलब इनको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, they have high melting boiling point, इनका भी melting point कैसा रहेगा, high रहेगा, they have high melting and boiling point, okay, so they are very hard, they are incompressible and they have high melting and boiling point, okay. Next, covalent solids, solids are poor conductors of heat, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो हमारे सॉलिड्स है, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मतलब इनसे ज्यादा से ज्यादा हीट और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है, यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है। जो ग्राफाइट है हमारा, ग्राफाइट इज जो हम लोग देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे इलेक्ट्रोड किससे बने हुआ रहते हैं, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री our electrodes are made up of graphite and graphite is a with solid covalent solid and graphite is a covalent solid and covalent solid conducts what, it conducts the electricity, हाँ inert है, मतलब किसी का रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन it conducts what, electricity, it conduct electricity, so but यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, covalent solids are poor conductors of heat and electricity। और यहाँ पे अगर मुझे एग्जाम्पल लिखने हैं तो एग्जाम्पल क्या लिखूंगा मैं, डायमंड, डायमंड, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, बोरॉन नाइट्राइड, कार्बोरेंडम, एक्सेट्रा, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। तो हमने कोवैलेंट सॉलिड में क्या क्या पॉइंट्स देखे, देखो कोवैलेंट, इन कोवैलेंट सॉलिड, सॉलिड किससे बना हुआ रहेगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम, सेकेंड एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय अ which bond, covalent, they are linked by a covalent bond and they form a network like structure, and because of network like structure we get the giant molecule, एक बड़ा structure हमें मिल जाता है। They are very hard, they are very hard, they are not compressible, they are most incompressible होंगे ही नहीं, they are most incompressible and they have high melting and boiling point and they are poor conductor, they are poor conductors of heat and electricity, they are poor conductors of heat and electricity। तो अभी यहाँ पे पॉइंट देखो, इनके बारे में क्या क्या पॉइंट दिए उन लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, मतलब एटम्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम एंड एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय व्हिच बॉन्ड, कोवैलेंट, हार्ड, they are very hard, melting point a very high melting point, same as almost ionic solid, 1200 degrees Celsius to 4000 degrees Celsius, and they are poor conductors of electricity, but exception, graphite is a good conductor of electricity, graphite is a good conductor of electricity and diamond is a good conductor of what, heat, मतलब नॉर्मली भी ऐसे पुअर कंडक्टर, लेकिन पुअर कंडक्टर में दो एक्सेप्शंस है, ग्राफाइट है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और डायमंड है जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, एंड एग्जांपल्स आर व्हाट, डायमंड एंड सिलिकॉन। तो ये हमारे किसके बारे में था,
कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स के बारे में था. Either you can say solid or you can call them as a crystal. Correct. Now we'll go for third type. Third one is a molecular crystal. Third one is a molecular crystal. Now, what is a molecular crystal? Here I can say substance such as chlorine, methane, hydrogen, carbon dioxide, oxygen. Substance such as chlorine, हमारा chlorine है, हमारा methane है, hydrogen, carbon dioxide, oxygen. On solidification give crystals. देखो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो क्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस, मीथेन इज ऑल्सो गैस, हाइड्रोजन इज ऑल्सो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो गैस एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो, ऑल आर गैसेस. बट ऑल दिस गैसेस, अगर इस गैसेस को अगर प्रेशर अप्लाई करोगे then they will undergo which process? Solidification. They will undergo which process? Solidification. और जब सॉलिड बनेंगे तो इनके सॉलिड को आप क्या नाम दोगे? इनके सॉलिड्स का जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और मॉलिक्यूलर सॉलिड. अगर नॉर्मली किससे बने हुए रहे तो नॉर्मली हमारे पास ये गैसेस है. कौन कौन से गैसेस है? क्लोरीन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैसेस है. अगर इनका टेम्परेचर लो करोगे और इनके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करोगे तो दे विल चेंज इनटू विच स्टेट? लिक्विड. और प्रेशर अप्लाई करोगे दे विल चेंज इनटू विच स्टेट? सॉलिड. एंड ऑन सॉलिडिफिकेशन मतलब यही सेम सब्सटेंस जो ऑलरेडी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे? गैसेस में. अगर इनके ऊपर प्रेशर अगर अप्लाई करोगे, इनके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करोगे then they will change into a solid and such solids are called as the molecule. क्योंकि molecule है, क्लोरीन molecule है, molecular crystals or they are called as a molecular solid. They are called as a molecular crystal or they are called as molecular solid. Correct. Then the constituent particles of molecular solids are molecule. The constituent particle of the molecular solids are what? Molecule. मतलब यहाँ पे molecular solid क्या? molecular solid किससे बनेगा? मॉलिक्यूल से बनेगा. मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बनेगा? मॉलिक्यूल से बनेगा. मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस. अभी मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस मतलब कैसे होगा? लेकिन ये अगर हमारा मीथेन है, ये मीथेन एक मॉलिक्यूल है, उसके नेबरिंग में दूसरा मीथेन, उसके नेबरिंग में तीसरा मीथेन और इनके बीच में अट्रैक्शन रहेगा. ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल, ये हमारा थर्ड मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शंस है तो ये हमारे मतलब मॉलिक्यूल से ये मीथेन. हाँ, अगर मीथेन में देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है.
इन मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट है। लेकिन अभी हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं देख रहे, हम लोग क्या देख रहे हैं? एक मीथेन मॉलिक्यूल दूसरे मीथेन मॉलिक्यूल को कैसे अट्रैक्ट करेगा? एक मीथेन मॉलिक्यूल दूसरे मीथेन मॉलिक्यूल कैसे अट्रैक्ट करेगा? तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसे वो हमें बनाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ पे क्या पता चल रहा है? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉरी ये हमारा अगर सॉलिड है, अगर ये हमारा सॉलिड्स है तो सॉलिड किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से बना हुआ है। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, मतलब ये भी अगर मीथेन रहेगा तो नेबरिंग मॉलिक्यूल भी मीथेन ही रहेंगे। अगर क्लोरीन लिया तो नेबरिंग मॉलिक्यूल कौन से रहेंगे? क्लोरीन रहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, करेक्ट? एंड हियर the molecules are held together by various intermolecular forces of attraction. The molecules are held together, मतलब देखो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इनके बीच में क्या रहेगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करा है, दूसरा मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करा है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है उसे आप क्या बोलोगे? दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है उसे आप क्या बोलोगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वी कॉल देम एज व्हाट? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अभी हमें देखना है कि कौन कौन से हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। हमारे पास कौन कौन से, मतलब यहाँ पे दो के बीच में अट्रैक्शन है, दोनों के बीच का अट्रैक्शन को क्या बोलोगे आप? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोलोगे, करेक्ट? तो अभी हमें देखना है हमारे पास कौन कौन से इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड में ए, सबसे पहला वाला अट्रैक्शन कौन सा है? वीक डाइपोल इंटरैक्शन। पहला वाला कौन सा आएगा? वीक डाइपोल इंटरैक्शन। पहला वाला आएगा वीक डाइपोल इंटरैक्शन। अभी डाइपोल इंटरैक्शन मतलब क्या होता है? देखो डाइपोल का मतलब क्या हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर मॉलिक्यूल लाइक HCl, water and SO2. Consider molecule like what? HCl, water and SO2. Now we know that in H and Cl, Cl is more electronegative than hydrogen atom. Cl is more electronegative than hydrogen atom. Cl is more electronegative than hydrogen atom. Cl क्या करेगा? देखो इनके बीच में H ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया हुआ है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया हुआ है, करेक्ट? H ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया हुआ है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया हुआ है, एंड दे शेयरिंग द बॉन्ड, दे आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। कहते हैं ये हमारा कौन सा बॉन्ड हुआ? कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चला जाएगा? क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो क्लोरीन विल हैव द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
और इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलोगे? पोलर। पोलर क्यों? बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग पोलैरिटीज फॉर्म हो रहे, एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग, एक Cl जो निगेटिवली चार्ज बना और H जो पॉजिटिवली चार्ज बना। ऐसे चार्जेस क्यों डेवलप हो गए? बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। Cl is more electronegative than hydrogen. तो Cl has a partial negative charge, H has a partial positive charge. तो हमारा मॉलिक्यूल कैसा बना? पोलर। एंड पोलर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल। व्हाई डाइपोल? देयर आर टू पोलैरिटीज, वन पोल इज पॉजिटिव एंड वन पोल इज नेगेटिव। तो अगर मैंने HCl मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया, HCl, इसमें Cl के ऊपर चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, H के ऊपर चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव। अगर उसके बाजू में दूसरा HCl मॉलिक्यूल अगर रखा तो Cl के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? पार्शियल नेगेटिव। H के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव। करेक्ट। तो इसे तो यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल। अगर आप मॉलिक्यूल को एक लाइन में रखते हो तो क्या होगा? नेगेटिव एंड ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। नेगेटिव, तो ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल है, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे आप क्या बोलोगे? इनके बीच में जो अट्रैक्शंस है, इनके बीच में जो अट्रैक्शंस है, इनके बीच में जो अट्रैक्शंस है उसे आप क्या बोलोगे? डाइपोल। बिकॉज ये पोलर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल। ये पोलर मॉलिक्यूल को भी हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल। तो इसे आप बोलोगे, क्या बोलोगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और दिस फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज अ डाइपोल interaction. This is called as a dipole interaction. ओके। तो ये मतलब ये हमारा पहला मॉलिक्यूल, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या आएगा? डाइपोल इंटरेक्शन आ जाएगा। करेक्ट, डाइपोल इंटरेक्शन। तो वही उनको बोलना है कि यहाँ पे हमने क्या बोला कि दो मॉलिक्यूल अगर रहेंगे तो दो मॉलिक्यूल के बीच में ये पहला वाला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करे? बाय यूजिंग विच इंटरेक्शन? डाइपोल इंटरेक्शन। ये एक इंटरेक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा हुआ? डाइपोल इंटरेक्शन हुआ। सेकेंड वन इज okay students, sorry. Second one is what? Second one is dispersion or London forces. The second one is डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस। अब ये डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस क्या है? देखो, ये फोर्स हमें कहाँ पे दिखाई देंगे? यहाँ पे ये जो हमें मिलेगा, या हमें किसमें बीच में दिखाई देगा? पोलर मॉलिक्यूल्स के, मतलब हमारा HCl था, हमारा HCl कैसे था? पोलर था। तो एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। कौन से फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस जो है, ये डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस जो है, यहाँ पे क्या होगा?
in non-polar molecule such as solid methane और हाइड्रोजन, इनके बीच में फोर्स हमें देखने के लिए मिलेगा। ये जो डिस्पर्शन फोर्स है या जो लंडन फोर्स है हमें किस में दिखाई देगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल हमारा अगर पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या दिखाई देगा? पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हमें क्या दिखाई देगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाई देगा। पोलर मॉलिक्यूल में हमें क्या दिखाई देगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाई देगा। लेकिन अगर हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ही नहीं है, अगर हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज मीथेन, हाइड्रोजन और इवन मोनो एटॉमिक solid like argon, नियॉन एक्सेट्रा, इनके बीच में हमें ये फोर्स दिखाई देगा। ये फोर्स हमें किसमें दिखाई? सबसे पहले ये जो डिस्पर्शन फोर्स है, ये डिस्पर्शन फोर्स का डिस्कवरी किसने किया था? लंदन ने। इसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम। ये डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में डिस्कवरी किसने किया था? लंदन ने। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लंदन फोर्सेस। और ये फोर्सेस हमें कहाँ पे दिखाई देंगे? अगर हमारा मॉलिक्यूल क्या रहेगा? नॉन पोलर रहेगा, मतलब मॉलिक्यूल में कोई भी पोलैरिटी नहीं रहेगी। मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी पोलैरिटी नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल मीथेन, मीथेन के ऊपर कोई भी पोलैरिटी नहीं है क्योंकि दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। हाइड्रोजन में भी कोई पोलैरिटी नहीं है। इवन हमारे मोनो एटॉमिक इनर्ट गैसेस लाइक आर्गन, आर्गन के ऊपर भी कोई पोलैरिटी नहीं है। नियॉन के ऊपर भी कोई पोलैरिटी नहीं, लेकिन तो भी यहाँ पे यस। हाँ ऑस्टिन, बोलो, कुछ पूछना चाहते हो? नो सर, बाय मिस्टेकली हुआ। ओके ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? मतलब ये मॉलिक्यूल की देखो, ये मीथेन, हाइड्रोजन, आर्गन, नियॉन एक ऐसे मॉलिक्यूल्स है नॉन पोलर है, लेकिन तो भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये कैसा रहेगा? नॉन पोलर। उसके बाजू में दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर भी कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा, तो इसे आप क्या बोलोगे? नॉन पोलर। लेकिन तो भी ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे अट्रैक्ट करेंगे मालूम है? अभी इस एटम के सेंटर में क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और बाहर के ऑर्बिट में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्पररी यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे टेम्पररी क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? टेम्पररी डाइपोल। क्या फॉर्म होगा? टेम्पररी डाइपोल फॉर्म होगा। मतलब कैसे हुआ कि हर एक एटम में एट द सेंटर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। हर एक एटम के सेंटर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। इलेक्ट्रॉन ढगा सर के इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते घूमते सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड में आ जाएंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन जब एक साइड में आ जाएंगे, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां पे कौन सा चार्ज फॉर्म होगा? माइनस नेगेटिव, डेल्टा माइनस। और इलेक्ट्रॉन जब एक साइड में आएंगे तो दूसरे साइड में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे डेल्टा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? टेम्पररी डाइपोल फॉर्म हुआ, टेम्पररी डाइपोल। और ये टेम्पररी डाइपोल यहाँ पे फॉर्म होने के कारण अब ये क्या करेगा? इधर का निगेटिव चार्ज यहाँ के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ का नेगेटिव चार्ज इधर के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर यहाँ पे डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा? टेम्पररी डाइपोल।
और वो फिर एक दूसरे को, ये एक मॉलिक्यूल फिर दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, और इस जो फोर्स यहाँ पे जो डेवलप होगा, इस फोर्स को देखो, यहाँ पे भी अभी डाइपोल फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी डाइपोल फॉर्म हुआ, तो इस फोर्स को आप क्या बोलोगे? डिस्पर्शन फोर्सेस। इसे आप क्या बोलोगे? डिस्पर्शन फोर्सेस। और ये जो डिस्पर्शन फोर्सेस है, ये जो डिस्पर्शन फोर्सेस वो किसने डिस्कवर किए थे? These forces were discovered by London, and therefore they are, the scientist का नाम था फ्रिट्ज लंडन, FRITZ। इस साइंटिस्ट का नाम क्या था? फ्रिट्ज लंडन। तो इसने डिस्कवर किए थे, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है? लंडन फोर्सेस। मतलब अगर यहाँ पे जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया, इसकी जगह आप ऐसे भी ले सकते हो, ये रहा हमारा मॉलिक्यूल कौन सा? आर्गॉन। या आर्गॉन, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा आर्गॉन। दोनों आर्गॉन मॉलिक्यूल है। पहला वाला आर्गॉन मॉलिक्यूल भी कैसे रहेगा? नॉन पोलर। दूसरा वाला आर्गॉन भी कैसे रहेगा? नॉन पोलर। दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फिर आर्गॉन का यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड में आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। करेक्ट? तो यहाँ पे भी फॉर्म होगा डाइपोल, बट टेम्पररी होगा, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? टेम्पररी डाइपोल। डाइपोल। और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा? टेम्पररी डाइपोल। और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और कौन सा अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच में रहेगा? दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा रहेगा? डिस्पर्शन फोर्स। एंड डिस्पर्शन फोर्स आर आल्सो कॉल्ड एज लंडन फोर्स। डिस्पर्शन फोर्स आर आल्सो कॉल्ड एज लंडन फोर्स। तो मुझे इतना ही बोलना है यहाँ पे कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल पोलर है तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या रहेगा? पोलर, मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास अगर मॉलिक्यूल इन पोलर मॉलिक्यूल में क्या रहेगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा। और इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा तो उनके ऊपर कोई भी डाइपोल नहीं रहेगा, लेकिन तो भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन से फोर्स से? बाय यूजिंग डिस्पर्शन फोर्सेस और बाय यूजिंग लंडन फोर्स। करेक्ट? अभी इसमें एक लास्ट है, अच्छा यादव सरांचं लेक्चर आहे का रे? ओके, थैंक यू। इंटरमॉलिक्यूलर, अभी सी टाइप का, हमें यही एक मेटेलिक प्रॉपर्टी कंप्लीट करूंगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब कैसे लगेगा? फॉर एग्जांपल इन एक इसमें देखने के लिए मिलेगा, इन सॉलिड such as water, solid water is called as the ice, ammonia and HF। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे देखा जाएगा? इन सॉलिड सच एज वाटर, अमोनिया एंड HF। अभी वाटर की देखो, वाटर की बात करो, वाटर HOH, ये वाटर है। नाउ इन वाटर हमें मालूम है, इन वाटर O is more electronegative than the H। O is more electronegative than the H, and because O is more electronegative, so O will have the charge, partial negative charge, and H will have the partial positive charge। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा इसे ऐसे बोलते हैं, पोलर भी है, एंड पोलर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल।
डाइपोल। ये हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल, उसके नेबरिंग में दूसरा वाटर मॉलिक्यूल लिया HOH। अगेन O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो O क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो O विल हैव द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, H विल हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। चार्जेस आपको समझ में आ रहे होंगे। जो एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा, नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, तो ये भी यहाँ पे भी चार्जेस डेवलप हो गए, मतलब ये भी कौन सा मॉलिक्यूल्स है, पोलर। पोलर मतलब कौन सा बॉन्ड रहेगा, डाइपोल। तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है ही है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल बॉन्डिंग क्या है, देखो स्पेशल, ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल है, इसे आप डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल सकते हो। लेकिन उससे भी और एक है कि अगर हमारे पास इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग electronegative atom like oxygen, nitrogen and fluorine, if a strong electronegative atom like oxygen, nitrogen, fluorine are bonded with hydrogen, are called मतलब अगर हमारे पास कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। मतलब अगर हमें इससे तीनों में से कोई भी एक एटम अगर है, तीनों में से अगर कोई भी एक एटम अगर हमारे पास है तो, और ये एटम किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन के साथ, इन दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज व्हिच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो आपने पी ब्लॉक में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट मॉलिक्यूल का, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस तो है ही है, इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को स्पेशल नेम क्या दिया हुआ है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को स्पेशल नाम क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों, बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहले एटम का O दूसरे एटम के H को अट्रैक्ट करेगा। पहले एटम का O मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे सॉरी पहले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट कर रहा है, और इसीलिए इस बॉन्डिंग को, ये जो हमारा बॉन्डिंग है, दिस बॉन्डिंग इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट। सो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द वन मॉलिक्यूल मतलब ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, मतलब एक एटम का ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो उसे क्या बोलोगे आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी दो मॉलिक्यूल साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, ये वाटर और ये वाटर, उनके बीच में क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप एग्जांपल अमोनिया का देखना चाहते हो, अमोनिया NH3, अभी NH3 मतलब N भी कौन सा आइटम आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा, N भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा, तो N will have the partial negative charge and H will have the partial positive charge. N will have the partial negative charge and H will have the partial positive charge. और दूसरा मॉलिक्यूल, ये पहला अमोनिया मॉलिक्यूल है जो ऑलरेडी पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, करेक्ट। उसके बाजू में दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल है NH, दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल है, यहाँ पे चार्ज रहेगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी कैसा रहेगा, पोलर रहेगा। पोलर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल। मतलब यहाँ पे भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन उससे बाद भी इधर का हाइड्रोजन और यहाँ का नाइट्रोजन, इनके बीच में, नाइट्रोजन कौन सा एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन
और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, इनके बीच के बॉन्डिंग को आप क्या बोलोगे? इनके बीच के बॉन्डिंग को आप बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, दो मॉलिक्यूल को आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी कनेक्ट, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है बट दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? देखो 3 देखा, मतलब हमारा थर्ड पॉइंट क्या था कि मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हिच फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? अगर दोनों ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर देखोगे, तो सॉरी, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल अगर दो पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? डिस्पर्शन फोर्सेस, मतलब लंडन फोर्स रहेगा। और अगर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम एंड दूसरे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्डिंग आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है। दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, तो ये रहा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट। और तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या आएगा? यहाँ पे दोनों ये सारे फोर्सेस हमारे वीक है, मतलब ये जो फोर्सेस के बारे में मैंने बात किया, कौन कौन से फोर्सेस के बारे में बात किया मैंने यहाँ पे? इनके बीच में यहाँ पे कौन सा फोर्स था? डायपोल डायपोल, ये वीक है हमारे आयोनिक और कोवैलेंट के कंपैरिजन में वीक है। इनके बीच में यहाँ पे कौन सा फोर्स था? डिस्पर्शन फोर्स था, इनके बीच में डिस्पर्शन फोर्स, लेकिन ये भी फोर्स हमारे बीच में कैसा है? वीक है। और यहाँ पे भी हमारे क्या देखा? दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन ये भी वीक है, तो ये वीक है, मतलब व्हाट आई वांट टू से, बिकॉज ऑफ वीक because of weak intermolecular attractive forces, because of weak intermolecular attractive forces, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहेगा? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा। सो बिकॉज ऑफ वीक इंटर फोर्सेस molecular solids are usually सॉफ्ट सब्सटेंस। ये हमारे सॉफ्ट है क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन वीक रहेगा, तो दे आर सॉफ्ट सब्सटेंस with
low melting point. They are soft substance with low melting point. And the last point I can say here, molecular solids are poor electrical conductor, मतलब इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा. Molecular solids are poor electrical conductors and are good insulator. Molecular solids are poor electrical conductors and therefore they are good insulators. Correct? Molecular solids are poor electrical conductor. ये हमारे poor electrical conductor मतलब they are good insulator. तो हमने इसके बारे में क्या क्या पॉइंट देखे, देखो एक बार molecular solids के बारे में क्या क्या पॉइंट देखे. सबसे पहले here देखो, यहाँ पे किस में रहेगा, एक तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल रहेगा. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब आर्गॉन नियॉन, या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब कौन सा रहेगा, वाटर मीथेन HCl रहेगा. उनके बीच में दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कौन सा रहेगा, लंडन फोर्स रहेगा. दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहेगा, डाइपोल फोर्स रहेगा. और दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा. ये उनके बीच में अट्रैक्शन कैसे रहेगा, वीक रहेगा. अट्रैक्शन वीक रहेगा इसलिए मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा इसलिए मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा. देखो कंपेरिजन को, यहाँ पे हाईएस्ट कितना है 3000 डिग्री है, यहाँ पे हाईएस्ट 4000 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे -272 डिग्री से 400. तो दे आर, एंड हियर यहाँ पे क्या आएगा, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये मतलब बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड एग्जांपल्स आर व्हाट, आइस एंड बेंजोइक एसिड. ये उनके एग्जांपल्स, दीस आर द एग्जांपल. करेक्ट? तो ये हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में हुआ. अब एक लास्ट टाइप का सॉलिड हमारा बाकी है, बट दैट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, हाईएस्ट दीपेश कुछ पूछना चाहते हो? सर आईस पण मॉलिक्युलर सॉलिडच आहे. हाँ, आईस पण, आईस म्हणजे वॉटर, मॉलिक्युलर सॉलिड आहे. सर पण ते इलेक्ट्रिकल ते कंडक्ट करणार की नाही इलेक्ट्रिसिटी? आईस मधून हो होईल सर. ना, पण पुअर आहे ना, होईल पण पुअर कंडक्टर आहे. हो सर, कारण की वॉटर करतो ना. हा, वॉटर करतं म्हणून आईस पण करणार, पण पुअर आहे कंडक्टर. ओके सर. तो 1 minute. So what is molecular solid? Molecular solid मतलब क्या, गैसेस को अगर आप कूल करोगे, गैसेस को अगर सॉलिडिफाई करोगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेगा. और मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे रहेंगे, दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस. दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस. They are held together by intermolecular forces. Intermolecular forces कौन कौन से रहेंगे, डाइपोल इंटरैक्शन रहेगा, डिस्पर्शन फोर्स रहेगा, या उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा. ओके, और उसके बाद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण दे आर वेरी यूजुअली व्हाट, सॉफ्ट, एंड देयरफॉर दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, एंड दे आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बट दे आर गुड इंसुलेटर्स. करेक्ट? तो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में हो गया. रिमेनिंग जो मेटालिक सॉलिड्स है दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. कोई डाउट पूछना चाहते हो?